Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the immunopathology. First, we will discuss the immunity. Then we will move towards the pathology of immunity disorders. Immunity, जिसको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है. Immunity is basically a protection to our body by means of resistance. The strategy is resistance against all type of foreign agents or foreign particles. Most of the students are confused with inflammation and immunity. Inflammation is response against any kind of injury through which foreign particles or microbes invade in our body. But immunity is resistance, yani ki no entry. It is resistance against those foreign agents. Protection, the strategy is resistance. Immunity, this is why it is more powerful than inflammation. Immunity के दो types होते हैं basically. एक innate immunity which is natural and acquired immunity which needs stimulation. Natural immunity, inborn immunity, newborn babies के अंदर inborn naturally by birth होती है. यानी it does not need any kind of stimulation. It is fixed immunity. ठीक है. Innate immunity, this is why non-specific generalized होती है. It is first line of defense. If we discuss the components of innate immunity, the number one example is intact skin. यानी undamaged skin is the component and most important component of immunity. And this is the example जिससे हम वो concept ले सकते हैं कि it is fixed, it is natural, यानी no need of stimulation. Skin is there for any time, but the thing is कि वो जो skin है वो undamaged हो, तो वो प्ले कर रहा होता है रोल इम्यूनिटी का, और वो नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है. टिश्यू मैक्रोफेजेस आर देयर, दे आर प्लेइंग सेम रोल innate immunity. Complement proteins, natural killer cells, neutrophils, mast cells, basophils, monocytes, secretions में IgA, these all are the components of innate immunity. If we discuss about the acquired immunity, which is specific, यानी it works on the specific task, ठीक है, it needs stimulation. The important thing is that right, acquired immunity is extremely powerful. Why? Because this is specific. It is again divided into two types: cell mediated immunity and cell mediated acquired immunity, and humoral immunity जिसको आप antibody mediated कहते हैं. Cell mediated का जो सोल्जर है बेसिकली वो सेल खुद है. यहाँ पे टी सेल है, उसको हम टी लिम्फोसाइटिक सेल कहते हैं, लिम्फोसाइट्स. इसी तरह ह्यूमरल इम्यूनिटी का जो सोल्जर है वो एंटीबॉडी खुद है. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड, एंड दिस इज़ वाई इट वाज कॉल्ड सेल मीडिएटेड. राइट, सेल मीडिएटेड का जो सोल्जर है वो टी सेल है. एंटीबॉडी मीडिएटेड का जो सोल्जर है वो एंटीबॉडी खुद है. एंटीबॉडी जो आती है वो बी सेल्स में से, प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स में से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, और एक्चुअली जो वर्किंग एक्टिव या एक्शन करता है वो एंटीबॉडी खुद करता है अगेंस्ट दोज फॉरेन एजेंट्स. This is why it is called antibody mediated. What are T cells and B cells? Basically, these are lymphocytes. As you all know that all kind of plasma cells and blood cells origination जो होती है वो बोन मेरो से होती है और वहीं पे मेचोरेंस होती है. अगर लिम्फोसाइट्स बोन मेरो में से ओरिजिनेट होते हैं और वो वहीं पे ही मेच्योर होते हैं तो उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं. अगर लिम्फोसाइट्स बोन मेरो से ओरिजिनेट हों और जो मेच्योर हों वो थाइमस ग्लैंड में जाके हों, इट्स लाइक कि पैदा इसने किया लेकिन अडॉप्ट किसी और ने किया, तो अडॉप्ट कहाँ पे जाके बोन थाइमस ग्लैंड में जाके हों या मेच्योर वहाँ हों, तो उसको हम टी सेल लिम्फोसाइट्स कहते हैं. देखा जाए तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर 10 to 20% आपके पास बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, जबकि 80 to 90% टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में बी सेल्स का बड़ा रोल होता है. एज आई हैव डिस्कस्ड के बी सेल्स में से प्लाज्मा सेल्स एंड देन एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं. इसी तरह टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं. दीज आर द सोल्जर्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. बी लिम्फोसाइट्स फीटस लिवर एंड बोन मेरो के अंदर पाए जाते हैं, जबकि टी सेल लिम्फोसाइट्स थाइमस ऑफ द फीटस से जनरेट होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है. अनदर पॉइंट विच इज़ नीड टू बी डिस्कस है कि टी लिम्फोसाइट्स के दो और मजीद जो है ना वो गार्ड्स होते हैं. एक CD4 सेल्स एंड CD8 सेल्स. CD4 टी हेल्पर सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी जब टी सेल्स थक जाएं या अपने काम को सरंजाम ना दे सकें तो वहाँ पे हेल्पर सेल्स के नाम पे CD4 सेल्स जो है वो काम करते हैं. इसी तरह CD8 सेल्स जो हैं वो टी सप्रेसर सेल्स हैं. ये जब कोई ओवर काम हो जाए, उनसे टी सेल्स ओवर काम कर जाएँ, ओवर वर्क कर जाएँ, तो फिर उनको सप्रेस भी करना होता है, तो उस पर CD8 सेल्स बड़ा रोल प्ले करते हैं. Let's review the antibodies. Antibodies are basically proteins जिसको आप ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ ये बने होते हैं, and because they are working for the immunity, so it is called immunoglobulin, right? The circulating antibodies are immunoglobulin. Basically these are the proteins. Proteins का basic कितना amino acid होता है. अगर स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे ना तो these are made up of amino acids.
अच्छा, एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन के। एंटीजन एंडोजीनियस भी होता है, एक्सोजीनियस भी होता है। अगर बॉडी के अंदर है तो एंडोजीनियस है, अगर बाहर से कहीं आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सूरत में या कहीं फॉरेन पार्टिकल की सूरत में तो वो एंटीजन एक्सोजीनियस कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ओवरव्यू के ऊपर आएँ तो एंटीबॉडीज़ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, इसके दो रीजन्स होते हैं जो कि यहाँ पे भी सेपरेटेड हैं। जो निचला रीजन है दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रीजन, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग वेरिएशंस नहीं होती, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट रीजन। जो अपर पार्ट है, अपर रीजन है, दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल रीजन। इसके अंदर क्योंकि वेरिएशंस होती रहती हैं जब भी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसी हिस्से के अंदर वेरिएशंस होती हैं, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल रीजन। इसी तरह जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं इनको हम एफ ए बी पोर्शन कहते हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है इसको एफ सी पोर्शन कहा जाता है। इसके अगेन दो चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की बनी हुई, एक हैवी चेन, एक जो है वो लाइट चेन होती है। अगर दोनों को मिला के अगर मैं बताऊं तो दो लाइट चेन एंड दो हैवी चेन्स होती हैं। अब ज़ाहिर है ये जो हैवी चेन्स हैं दो और दो लाइट चेन्स हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। दो हैवी चेन्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं और हैवी चेन लाइट चेन भी जुड़ी हुई है। तो ये जो इनका अटैचमेंट है ये पॉसिबल है एक बॉन्ड की सूरत में, वो बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो कि इनको अटैच करके रखता है। अगर हैवी चेन्स की मैं बात करूँ तो दोनों हैवी चेन्स को डबल डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जो है वो लिंक्ड है। इसी तरह हैवी चेन एंड लाइट चेन जो है वो दोनों सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हैं। इसी तरह जो आपस में अगर इनके अमाइनो एसिड्स हैं तो वो भी इंटर डाइसल्फाइड लिंकेज के बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन जो है वो एक बॉन्ड होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के या एंटीबॉडीज़ के 5 किस्म होते हैं। इसको आप अमजद एज निमोनिक के तौर पे भी याद कर सकते हैं या अगर सीक्वेंस में चलें तो गेम डी के नाम से भी याद किया जाता है। इसके मेन मोटी मोटी पॉइंट्स हैं जो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बीसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। आईजीजी या इम्यूनोग्लोबुलिन जी इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी और इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड याद रखिएगा दिस इज़ द ओनली एंटीबॉडी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, यानी कि अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करे तो इट मीन्स कि न्यू बॉर्न्स के अंदर भी ये मौजूद होता है। इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसिकली एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीडेंट। ये दोनों पॉइंट्स में इन्फ्लामेशन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने रिव्यू करने तो पिछले वीडियोस के अंदर जाएं और फिर उस वहाँ पे केमिकल मीडिएटर्स में आपको ये सारी चीज़ें रिव्यू हो जाएंगी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के पीछे भी आईजीजी का काम है और ऑप्सोनिन की तरह भी ये काम करता है। बेसिकली दिस पॉइंट वाज डिस्कस्ड इन फेगोसाइटोसिस। IgA is produced by mucosal plasma cells. It defends for the mucosal membrane. It present in mucosal epithelium and mucosal secretions. यानी भी कहीं पे भी जो secretions की बात हो या mucosal membranes की बात हो तो वहाँ पे IgA का बड़ा रोल होता है। This is why it is also called secretory antibody. Structurally ये dimer होता है, structurally IgG जो है वो monomer होता है। इसी तरह अगर IgM की बात करूँ तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स, जबकि IgG जो था वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स के तौर पे काम कर रहा था। दिस इज़ द मेन इम्यूनोग्लोबुलिन IgM जो कि डिफेंस करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस के। It cannot cross placenta and structurally it is pentamer. It again activates the complement system but as a primary response. Okay, IgE which mediates type 1 hypersensitivity. We are going to discuss in the next video. Type 1 hypersensitivity को आम ज़बान में हम रिएक्शन कहते हैं या एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं या एलर्जी कहते हैं। तो उसके पीछे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो IgE है, उसका बड़ा रोल होता है। It is main host defense against Helminths or any kind of worm infection or any kind of allergies. So it cannot cross placenta and does not activate any complement system. डिफेंस अगेंस्ट एलर्जीज एंड हेलमिंथ इन्फेक्शंस। IgD के कोई स्पेसिफिक फंक्शंस डिटरमाइन नहीं किए गए स्टिल, लेकिन ये अटैच होता है बेसोफिलिन मास्ट सेल से और उनके काम को यानी एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाइपरसेंसिटिविटी डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। स्टे कनेक्टेड।